IELTS Writing Task 2. So today I'll be talking about the 10 different things you should be knowing if you want to improve your writing task 2. Okay, let's start. Let's start with the very first thing. If you are watching this video, it means that you would be appearing for IELTS. आप शायद IELTS के लिए कुछ देर में appear हो रहे होंगे. You could be someone preparing in an academy, or you could be someone who is doing self-preparation. I'm not going to give a very long video and I'm not going to make it boring, but I'm just going to tell the 10 basic things you should be knowing before you actually start with your writing task 2 preparation. I've seen a lot of students coming to me and saying that in IELTS we have to practice. The more we would write, the better we would become at writing. ये IELTS की राइटिंग में अप्लाई नहीं होता. IELTS की जो राइटिंग है उसके अंदर you have to go from one stage to the other. You have to first develop your skills and then you have to go towards practice. If you have been my student, you would know that I never start the course before I give a complimentary grammar review and I would say a complimentary week for grammar review, for vocabulary and everything. तो वो जो वीक होता है उसका मकसद ये होता है कि वो स्किल्स जो आपको भूल चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब फ्री होती है, तो वो स्किल्स जो आप भूल चुके हैं उसको आप एक किस्म का रिवाइज कर सकें. लेट्स मूव टू द फर्स्ट थिंग. इफ़ यू आर preparing for IELTS, the first thing you need to understand, if you're preparing from any academy or in case you're doing it at your own, the first thing you have to see is not a topic, is the first thing you need to see is the band descriptor. बैंड डिस्क्रिप्टर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप अभी सर्च करें इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा, जो आपको बता रहा है कि एग्जामिनर आपको किस क्राइटेरिया पे ग्रेड करेगा. लाइक व्हाट आर द थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द एग्जामिनर इज गोइंग टू गिव यू द स्कोर. I get a lot of students who have taken the exam and they have prepared for the exam 2 or 3 times and they have never seen the band descriptor. Band descriptor आप लिखें IELTS writing task 2 band descriptor, एक पब्लिक वर्जन है, वो आपके सामने आ जाएगा. आपको पता लग जाएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, what are the things which you are not having in your essays and what are the things which you are having in your essays and what are the reasons why you are not getting your desired score. So the first thing you need to understand is that you need to have a look at the band descriptor so that you could have a better preparation strategy. The second thing is grammar review. जब मैं grammar review की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं किसी का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ. grammar review में जो लोग कहते हैं ना नहीं हमें तो ग्रामर आती है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनको होती है. इस वजह से अगर आप मेरे 5 वीक के कोर्स में एनरोल्ड होंगे तो मैं आपको पहला हफ्ता फ्री ग्रामर रिव्यू और वोकैबुलरी रिव्यू और सब कुछ दूंगा. इसलिए नहीं देता कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि मैंने अपने बिजनेस में सर्वाइव करना है. अगर आपका स्कोर नहीं आता तो द वन हु वुड बी अफेक्टेड वुड बी द इंस्टीट्यूट, लाइक आई वुड बी अफेक्टेड, राइट. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. वो जो ग्रामर रिव्यू होता है उसके अंदर हम पंक्चुएशन के रूल्स को रिवाइज करते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव, मॉडल वर्ब्स, वो सारी प्रपोजिशनल फ्रेजेस, एडवर्बियल क्लॉजेस, वो सब चीज़ें हमने 3 से 4 दिनों में, एक इसके बजाय कि मैं आपको कहूँ जाए स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में एनरोल करें, हम वो सारी चीज़ें एक हफ्ते में कर लेते हैं. सो ग्रामर रिव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैं 3 बार ग्रामर रिव्यू करवाता हूँ, उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते. आई मेक देम टेक इट 3 टाइम्स, मतलब एक सेशन में कर लिया, वीकेंड के एक और सेशन में उनको बुला लूँगा, बिकॉज इवन आफ्टर डूइंग इट 1 or 2 टाइम्स दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. क्योंकि एक चीज़ जो कई सालों से, इन केस आपको कोई कॉमास के रूल यू हैव फॉरगॉटन देम और नो वन टोल्ड यू अबाउट देम, इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट you need to do it again. You have to form layers. जब तक वो layers form नहीं होंगी आपको बार बार भूल जाएंगे. Now the third thing is coherence and cohesion. That is again something which we do in the first week. Words like moreover, furthermore, thus, therefore, ये coherence and cohesion जो है
दैट इज वर्थ 25% ऑफ योर राइटिंग टास्क. ग्रामर जो है, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, इट इज वर्थ 25% ऑफ योर entire task. Then we have lexical resourcefulness. What is lexical resourcefulness? Spelling of vocabulary. Now, what is vocabulary? Can you learn 10,000 words in a month? You cannot. You can never. You cannot memorize words, but we work on something called similar words. Similar words का क्या मतलब होता है? एक word है, for instance, encourage. Encourage. अब encourage का similar word बताएं आप. Tell me the similar word for encourage. Encourage, motivate. तो हम ऐसे वर्ड्स के ऊपर काम करते हैं. रोज़ के आपको मैं 2 पेजेस देता हूँ जो वर्ड्स आपको आते हैं, मगर आपको उसका मीनिंग ज़्यादातर उर्दू में आता है. इंग्लिश में जब आप सोचते हैं तो आप भूल जाते हैं उस वर्ड के बारे में. सो वी वर्क ऑन दिस एक्टिविटी एवरी डे सो दैट यू डोंट हैव टू लर्न न्यू वर्ड्स. You just have to recall the ones you already know. That is called the vocabulary which you have to develop for IELTS. Then we have common topics. What is the meaning of common topics? Common topics का मतलब क्या है? Education, fashion, law, gender biasness. एक कोई 45 to 50 topics की एक list होती है which is available everywhere on internet, जिसके बारे में वो ये चाहते हैं कि आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो. अभी जो मैं जितना भी मैं बोल रहा हूँ, आपने ये देखा होगा मैंने अभी तक ऐसे लिखने का एक बार भी नहीं बोला. ये जो पहले 5 स्टेप्स हैं, ये आइल्स कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं कवर करा देता हूँ. इफ़ यू हैव बीन माई स्टूडेंट यू वुड एक्चुअली नो इट कि ये जो 5 स्टेप्स होते हैं, बैंड डिस्क्रिप्टर्स, ग्रामर रिव्यू, कोहेरेंस, कोहेजन, लेक्सिकल रिसोर्सफुलनेस, कॉमन टॉपिक्स, कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं करा देता हूँ. इस वजह से कि आप जब कोर्स स्टार्ट करें तो आपकी जो दिमाग है वो एनलाइटेंड हो. इट शुड बी हैविंग नॉलेज. नाउ लेट्स मूव टू द 6th वन विच इज़ टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. इसमें अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे. फॉर इंस्टेंस एग्री, डिसएग्री, बोथ व्यूज, प्रॉब्लम कॉज सोल्यूशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, हाइब्रिड क्वेश्चन. अब ये 6th स्टेप में मैं आपको कह रहा हूँ ये करें. Then we would be working on present, extend and support. We would be working on body paragraphs. Body paragraph कोई भी एक ऐसे है, उसके अंदर आपने 3 से 4 आइडियाज़ एक पैराग्राफ में डाल देने हैं, या फिर आपने उस पैराग्राफ को डेवलप करना है पूरी तरीके से. That is the question. Now what I am trying to tell you is that even if I tell people that they have to develop the ideas, it takes them a very long time to actually do it. हमें आदत पड़ी होती है, वी आर वेरी मच हैबिचुअल ऑफ पुटिंग 4 to 5 डिफरेंट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इन वन पैराग्राफ. दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क ऑन आइल्स. यू हैव टू प्रॉपरली डेवलप योर आइडिया. देन एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन. हाँ, अब इसकी भी एक सेपरेट क्लास होगी जिसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन. एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज़ अ डिफरेंट इंट्रोडक्शन एंड अ डिफरेंट कंक्लूजन. आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आइल्स में इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं. वो जो 5 टाइप्स हैं, उन हर टाइप का इंट्रोडक्शन डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन है. यू कैन नॉट जस्ट लर्न वन इंट्रोडक्शन एंड जस्ट पुट इट इन ऑल अदर्स. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग यू हैव टू डू. वंस यू हैव गॉन थ्रू दिस एंटायर थिंग, यू हैव टू रीड एट लीस्ट 200 सैम्पल एसेज. जिसका भी स्कोर आया है, जिसका भी स्कोर एक्सेप्टेबल लेवल पे होता है, किसी के लिए 6 होता है एक्सेप्टेबल, किसी के लिए 6.5, किसी के लिए 7, 7.5. अगर आप 200+ सैम्पल एसेज नहीं रीड करते तो आप ऐसे जितने मर्जी लिख लें कोई फ़ायदा नहीं होगा. अगर आप 200 सैम्पल एसेज नहीं लिख सकते, नहीं पढ़ सकते, इफ़ यू कैन नॉट रीड दैम, यू हैव टू राइट 100+ सैम्पल एसेज. नाउ द क्वेश्चन इज, अ लॉट ऑफ यू वुड बी वंडरिंग, ये मैं आपसे ये 100 सैम्पल एसेज क्यों लिखवा रहा हूँ? क्या मैं आपको कह रहा हूँ नहीं लिखें, या मैं कह रहा हूँ जो लिखा हुआ है उसी को कॉपी करें? मैं आपको कह रहा हूँ जो लिखा हुआ है उसको कॉपी करें, क्योंकि जब आप उसको कॉपी करेंगे आपके पहले तो आपको पता लगेगा कि आइडियाज़ क्या हैं, आपको पता लगेगा कि स्पेलिंग की मिस्टेक्स कम होंगी, वोकैबुलरी विल इम्प्रूव, यू विल नो हाउ लिंकिंग डिवाइसेस आर यूज्ड, यू वुड नो
in what ways you have to connect paragraphs. You would know in what ways introductions are written down. You would know in what ways paragraphs are written down. So if you would be, or if people are my students, I normally make them write it so that they could do it. अगर मैं किसी को कहूँ कि आप रीड करें, तो रीड पे मुझे कोई कॉन्फर्मेशन मेरे पास नहीं होती. I don't have any confirmation that you would actually be doing it. So I make people write it down. 100 तो एक फार फेस्ट होता है, मगर मैं 10 to 15 पर वीक ज़रूर लिखवाता हूँ. अच्छा, जब आप ये कर लेंगे, ये नहीं है कि मैं आपसे ऐसे लिखवाऊँगा ही नहीं. कुछ लोग होते हैं वो हर रोज़ ऐसे दे रहे होते हैं. कुछ लोग, some people are submitting 3 to 4 essays every day. But don't start submitting your essay from the day one, because only practice would do nothing. आप ऐसे लिखेंगे, मैं उसको चेक करके आपको दे दूँगा, फ़ायदा क्या होगा? आपको पहले अपनी स्किल्स को डेवलप करना है. वो 4-5 दिनों में आपको खुद समझ आ जाएगी बैंड डिस्क्रिप्टर दिखने के बाद. अब वो बैंड डिस्क्रिप्टर जो बैंड डिस्क्रिप्टर है, वो मैंने नहीं बनाया, वो एग्जामिनर ने बनाया. वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिसको आपने देखना चाहिए, जिसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सच है. Do not waste your money and time by just writing down essays and saying, okay, it's fine. Look at the band descriptor. At least see what they are requiring from you. And then you will start writing down your essays. Now, when you would be writing down your essays, आपके वो check होंगे, आपको mark किया जाएगा. There would be discussion classes with the teacher. There would be discussion classes in which I would encourage all of you to look at each other's essays. एक ऐसी classes भी होती हैं per week, जिसके अंदर सेकेंड वीक में होती है, जिसके अंदर मैं आपको कहूँगा कि आपने ये जो अभी जैसे 25 स्टूडेंट्स हैं, तो ये सब ने 4 लिखे थे इस वीकेंड पे, तो ये 100 एसेज हैं, मैंने चेक कर लिया. अब एक दूसरे की गलतियाँ देखें. देन व्हाट पीपल डू इज़ दैट दे स्टार्ट राइटिंग डाउन द मिस्टेक्स विच वर कमिटेड बाय अदर पीपल ऑल्सो, बिकॉज यू कैन इवन लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स विच द अदर पीपल हैड कमिटेड. ओके, सो डू योर राइटिंग टास्क टू इन अ सिस्टमैटिक मैनर. ऐसे अपने साथ ना करें कि आप, जैसे आपने ये 10 चीज़ें देख ली हैं, मैं आपको बड़ा बेसिक सी 2 चीज़ें बता देता हूँ. जिन्होंने बैंड डिस्क्रिप्टर नहीं देखा या जिनको प्रिपरेशन का नहीं पता, वो 2 बातें ज़रूर करते हैं. वो पहली बात होती है आइल्स की राइटिंग टास्क 2 का फॉर्मेट क्या है, और दूसरी चीज़ होती है हमने ऐसे लिख दिया, इसको चेक कर दें. अच्छा, आपको ऐसे चेक भी हो जाएगा, तो क्या रोज़ गेसिंग गेम होगी? गेसिंग गेम तो नहीं होनी चाहिए ना, कि चलें आपने कॉमा नहीं लगाया, मैं कहूँ कि आप तीसरे हफ्ते में, चौथे हफ्ते में मुझसे पूछ रहे होंगे कॉमास के क्या रूल्स हैं. क्या मुझे वो पहले बताने चाहिए, बाद में बताने चाहिए? वो तो पहले, वी शुड डू देम बिफोर. सो दीज आर द 10 थिंग्स यू शुड बी कवरिंग इवन इफ़ यू प्रिपेयरिंग एट योर ओन. इफ़ यू डोंट डू देम, यू वुड हैव टू टेक द एग्ज़ाम अगेन. आपको फिर से देना पड़ेगा. एंड देन यू विल रियलाइज़ कि हाँ, ये 10 चीज़ें थी, जो स्टेप्स थे जिनको मैंने कवर करना था, वो मैंने 4-5 दिन में कर लिया. अब मैं जितने भी एसेज लिखूँगा, अब फ़ायदा क्या होता है, जो ग्रामर रिव्यू या कोहेजन का वो जो वीक ले लेते हैं, उसका फ़ायदा ये होता है कि उनको पता होता है कि हाँ, हमने मिस्टेक कर दी है, वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. जिन्होंने किया ही नहीं होता, उनको एंड तक नहीं पता लगता कि हमारी मिस्टेक क्या है. बस एक ऐसे होता है, उस पर स्कोर मिल जाए. हर ऐसे में गलतियाँ होती हैं. अगर आपको एक ऐसे मिल रहा है जिसमें कोई मिस्टेक्स ही नहीं है, इसका मतलब है उसकी जो चेकिंग है उसमें मिस्टेक्स हैं. ओके, थैंक यू.